ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। बेटा टैटू आर्टिस्ट है, तो वो अफसर बोलता है यार आप ऑफिसर, बेटा टैटू आर्टिस्ट। तो मैंने कहा सर बच्चों का जुनून है, अभी क्या करें। तो मेरे को बहुत हुआ था जब ये गया था, इतना दुख हुआ था कि मतलब ऐसा किसी के साथ हो ना, कोई बच्चा घर से ना जाए। तो उस टाइम मन में ख्याल आते हैं कि क्या होगा क्या होगा। जब तक ये हमें मिले ही नहीं, उदों तक मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰਲਾ ਹੀ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਨਾ कि ਕੀ खाना खाया किधर, क्योंकि हर माँ बाप को यही चिंता रहती है कि मेरे बच्चे किधर हैं। Baby, I'm Cam's, baby, I'm Cam's. Come to Ink Zone, I will link you. Come to Ink Zone, I will link you. Baby, I'm Cam's, baby, I'm Cam's. Baby, I'm Cam's, baby, I'm Cam's. Come to Ink Zone, I will link you. Come to Ink Zone, I will link you. T-shirt na pawa, tattoo dikhawa. ਮਿਲਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈਕਸ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं कैप्टन रविंदर सिंह, रिटायर्ड इंडियन आर्मी। मैं कमलजीत सिंह ਦਾ ਫਾਦਰ नहीं। इसके बारे में मुझे कोई ਇੰਨਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਟੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਟੈਟੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 10-11 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2010-11 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮਪੁਰ KB ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟੈਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ ਇਹ। पर टैटू का कोई इतना नहीं सीगा शौक, मतलब कि जिस तरह इन्हों का सीगा। ये जी ऐसे हुआ कि मतलब कि ऐसे मैं जब छुट्टी आता था घर में, छुट्टी आना जो तो कन्ना में खुसर फुसर होनी है कि मेरी इन्हों की मम्मी ने मैंने दसना, कमलजीत की मम्मी ने, कि इदा बेटा कह रहा भी क्या तुम राजी हैं इस वास्ते। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पढ़ेगा चंगा अफसर बनावांगे इनू। पर ਇਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਬਕੇ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਾਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਭਜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਔਰ NCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं आप थानू जाना पैना है, शायद वो गोवा चले गया, कुछ मतलब गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि वो मतलब कि गोवा चले गया। मैं कहा फिर
किस तरह प्रोग्राम बनाया जाए। वो कहती कि इधरों मेरे पिताजी आ रहे हैं और मेरे मामा जी आएंगे और ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। तो मैं तो ऑन ड्यूटी ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗੋਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, 8 ਦਿਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਛੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੋਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੀਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਕੜਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਮਲਜੀਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਮ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮੋਰੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਖਾਣਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੀਟ ਜੇ ਉਹ ਚਿਕਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੱਚੇ पूरे। तो मेरे मामा जी और पापा जी कह रहे थे कि बेटा चुप चुप अभी मत जाना, खाना खाने दो। अभी कैसे रहा नहीं जाता किसी से भी जब ऐसी बात हो जाए और एकदम अचानक नजर आ जाए बंदा तो कितनी खुशी होती है। तो मैं नहीं रुका, मैं फिर वहां चले गया सीधे। जब इसके सामने जाकर खड़ा हो गया तो इसका मुंह एकदम पीला हो गया और उठ करके खड़ा हुआ, बोला पापा आप कहाँ किधर आ गए, कैसे आ गए। मैं कहा बेटा हम आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। पर ये उठ करके मेरे गले लग गया और रोने लग गया। ये बोला पापा मैं गलती कर दी, मैं आ गया, मैं बिना बताए आ गया। मैं चल कोई बात नहीं बेटा तू खाना खा, हम भी तेरे से खाना खाएंगे, बैठ करके देखते हैं, कोई चक्कर नहीं है। आ गए तो आगे कोई बात नहीं, अभी हम भी आ गए, तू डर मत। तो फिर उधर बैठ के ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਵਧੀਆ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹੇ ਆ। हाँ पूरा देखा भाई मतलब कि गोवा में तो बहुत अच्छा रौनक है, आपको पता है। बीच में सारे बीच घूमे हमने, फिर जितने भी थे एक हफ्ता हम वहाँ रुके 5-6 दिन। हाँ वहाँ पर टैटू का बहुत है, वहाँ पर जगह जगह पे है। बच्चे टैटू बनाने वाले भी हैं और बनवाने वाले भी हैं। वो गोरे गारे काले बहुत आते हैं अपने। हाँ तो फिर भी मैं राजी नहीं था इसके लिए। तो फिर घर में आ गए हम, चलो ऐसे ही इसको लेकर के घर में आए। जब जो घर आए तो फिर भी वो मतलब कि साढ़े दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਟੈਟੂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਟੈਟੂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਟੂ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ पाना। कहते कोई गल नहीं जी पा दो, कोई नहीं। देखो जी इसने 3 साल वहाँ पर काम किया है। 9 में चले गया था वहाँ, 9, 10, 11
11-12 ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਉਧਰ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਦੀ 50,000 ਪਾ ਦਿਆ, ਕਦੇ 30,000 ਡਾਲ ਦਿਆ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪੇਮੈਂਟ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ। ਉਹਦਾ ਘੱਟੇ ਸੀਗਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ टैटूइंग। तो ये फिर देखो जी कामयाब बच्चा करने लग जाए जब, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਟੈਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ आपके बेटा जो है बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मैं इसको अपना स्टूडियो देना चाहता हूँ। मैं इसको जलंधर में मेरा स्टूडियो है माडा टाउन में, अगर मैं दे दूँ तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। मैं कहा सर जी इसके बारे में तो मैं थोड़ा बात करूँगा, चारों तरफ से पैसे भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो मैं आपको 1-2 दिन दो, मेरे को 3 दिन, मैं इससे ही बात करूँ। तो मेरे को ये बोल रहा था पापा आप ले लो उसको, मेरे लिए इतना कर दो, कोई बात नहीं, मैं यही काम करना है अभी। तो ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਔਰ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ कन्वर्ट हो गया अभी, मतलब कि पढ़ाई तो चलो यही पढ़ाई हो गई अभी, यही पढ़ाई हो गई और सारा कुछ ये हो गया। चलो एक बच्चा काम करने लग गया तो खुशी तो हर एक कोई होती है। इससे पहले जी जब टैटू सीख के आया तो मेरे को बोला कि मैं हुशियारपुर में था उस टाइम पर, मैं आदमपुर से हम हुशियारपुर चले गए, तो उसके बाद मैं हुशियारपुर, हमारा मकान था, कोठी थी, तो उधर गए। तो फिर मैंने हुशियारपुर में इसके मामा जी का एक था वहाँ पर डीएवी कॉलेज के सामने, उनका ही अपना ही था अपार्टमेंट वगैरह सारा कुछ था। तो उन्होंने ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾ ਟੈਟੂ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਟੂ ਸ਼ਾਪ ਆਪਾਂ ਖੋਲੀ ਛੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਟੂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ मतलब कि ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अपना जो भी है। देखो आज मैं बहुत प्राउड है अभी, तो मैं तो कहता हूँ जब दुख तो मेरे को बहुत हुआ था जब ये गया था, इतना दुख हुआ था कि मतलब ऐसा किसी के साथ हो ना, कोई बच्चा घर से ना जाए। तो उस टाइम मन में ख्याल आते हैं कि क्या होगा क्या होगा। जब तक ये हमें मिले ही नहीं उदों तक मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰਲਾ ਹੀ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਨਾ कि क्या खाना खाया किधर, क्योंकि हर माँ बाप को यही चिंता रहती है कि मेरे बच्चे किधर हैं कैसे हैं। वो तो वैसे भी घर में हो तो चिंता रहती है, लेकिन ये तो घर से भागा हुआ और हमें यही फोन टेंट नहीं कर रहा, और बस वो एक ट्यून आ रही है, फोन नहीं टेंड हो रहा है। तो बड़े मतलब के दिल में शंके हो रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मतलब एक चीज थी। जब उन्होंने भी उसके बाद में ये पूरी कठिन तपस्या के बाद जहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं तो कहता हूँ चलो सभी को बच्चे ऐसे भगवान दे, जो कि इतना बड़ा कारोबार इन्होंने कमलजीत ने संभाला। और मेरे 50-60 बच्चे आर्टिस्ट भी बन गए इसके पास आ करके, और अपना खुद ब खुद अपने घर चला रहे हैं, अपना सीख करके चले गए और अच्छा मतलब कि उन्होंने अपना परिवार के साथ रह रहे हैं और अच्छी फैमिली, अच्छा अपना कारोबार चला। नहीं ये जो इंडस्ट्री है बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ कैसे ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਰ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨੂਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਸ ਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸਿਪਲਨ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, मैं सर मैंने बाबा जी के पेपर दे दो, क्या आज भर्ती हो रही है इसमें जलंधर में, तो मैं भर्ती देखने जाना चाहता हूँ। तो बोले नहीं नहीं बाबा जी तो गालियाँ निकालेंगे, हम पेपर नहीं देंगे, उनके कुछ भी नहीं देंगे। तो मैंने कहा दे दो, मेरे हो सकता है मैं भर्ती हो जाऊँ। मैं उनको बिना बताए उनके पेपर ले गया था उधर रामा मंडी, और उधर बड़ा रश हो रखा उस टाइम पर। तो वो शोर कर रहे थे फौजी के किसी का भाई फौजी हो, किसी का लड़का जो है भर्ती होना चाहता है, या किसी का कोई रिलेटिव हो तो आ जाओ इधर। तो हम 20-25 बंदे फटाफट उधर भागे। तो उन्होंने बाहर ही हमारे झोले वगैरह रखा करके और हमारी शूट लगवा दी। बोले वहां पे संतरा मिलेगा एक, हम संतरा ढूंढ रहे थे, संतरी बोलते किसी गार्ड को बोलते हैं। उस टाइम मुझे नहीं समझ संतरा के संतरी है, ऐसा ये नहीं मालूम था। हम संतरा ढूंढ रहे थे, हमने कहा संतरा कहाँ? बोला संतरे मैं ही हूँ, आ जाओ मेरे पास, पर्ची लो और जाओ। तो मैं उस टाइम पहले 3 में आ गया था, 25 में थे। इतना मैं जुनून होता ना ये। तो हमें भर्ती होने का एक शौक था, और जब भर्ती पहले दौड़ी होती थी, और दौड़ होने के बाद अंदर ले गए हमें। अंदर जा करके वो बीम वगैरह लगाए, खड्डा वगैरह किया, उसके बाद टेस्ट हुआ छोटा सा। शाम को हमें गाड़ी चढ़ा दिया था हैदराबाद के लिए। वो एक जुनून होता है, ये बच्चे के अंदर जुनून होता है। अभी इसके अंदर जुनून यही था कि मैंने एक टैटू आर्टिस्ट ही बनना है, मैं कोई दूसरी जॉब नहीं करनी है। तुम आप जितना मर्जी जोर लगा लो। फिर उसी हिसाब से हमें भी डरना पड़ा। यस, मैं वैसे देखा, मैं 2014 में पेंशन हो गया था। मैं जब मैं पेंशन आया था तो मेरा भी शौक था कि मैं भी बाहर घूम के आता हूँ। मैं अमेरिका चले गया था। अमेरिका में मेरा वीजा लग गया था जल्दी, और एक ही दिन में वीजा लग गया था। पीछे अभी तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, 1.5-2 साल लग जाते ना। उस टाइम हमने फॉर्म भरा और हम गए इंटरव्यू के लिए। वहां पर गए और उन्होंने बोला कि आप आ जाओ हमारे पास जैसे बात बननी होती। तो हम वहाँ उधर चले गए। तो बोले कहाँ जाने की तैयारी आपकी हो रही भाई? मुझे नहीं मालूम वो कौन थे। तो हमने कहा सर मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, और मैं और मेरे मिसेज हम अमेरिका घूमना चाहते हैं। कहाँ जाओगे? ये देखना, स्टैचू देखना है, वहाँ कुछ न्यूयॉर्क घूमेंगे। तो उधर कितने दिन के लिए जाना है जी? 15 दिन के लिए जाएंगे हम, सिर्फ 15 डेज के लिए सर जाएंगे, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि आपने ज्यादा नहीं बताना, 15 दिन के लिए जाना, घूम के आना है बस। तो वो सारी बातचीत पूछी, बेटा क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है? बच्ची तो पढ़ रही है, ये हमारी कॉमर्स कर रही है, बेटा टैटू आर्टिस्ट है। तो वो अफसर बोलता है यार आप ऑफिसर, बेटा टैटू आर्टिस्ट। तो मैंने कहा सर बच्चों का जुनून है, अभी क्या करें? तो बोला लाओ ये अपने पासपोर्ट लाओ। उन्होंने पासपोर्ट लिया, बोला 4 दिन बाद आपका वीजा लग जाएगा। देखो किस्मत की बातें होती हैं। तो मेरा वीजा लग गया वहां पर। तो फिर मैं अमेरिका में भी लगा के आया, 4-5 साल लगा के आया हूँ, और वहाँ मिशिगन में, और सारे घूम घाम के बड़ा अच्छा वहाँ माहौल देखा, बड़ा अच्छा सीखने को भी मिला। बच्चों के साथ भी रहना पड़ा वहाँ। काम करने पड़ते हैं, तो कोई बेला नहीं रहता है। बुजुर्ग भी काम करते हैं सारे, मतलब के घंटे लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के। हमारी तरह नहीं है, इंडिया की तरह नहीं है कि बैठे गप मार दिया और शाम को जाके रोटी खा ली। वहां तो एक कमरे का किराया भी $400-400 होता है, आपको पता है। उसके बाद में वो माहौल देखने के बाद
मैं कभी कभी बच्चों से जब मिलने जाता था, जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, तो वही एक रूम के अंदर 15-15 बच्चे मैं देख करके मैंने कहा यार बेटा जी कैसे, बोला अंकल आप बताना नहीं किसी को, हम अपने कर रहे हैं, हम हमारा शेयरिंग हो रहा है सारा कुछ, और अच्छे हम बढ़िया है, कोई नहीं बताता, क्योंकि तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी बच्चों को भी। और कैसे वो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कैसे पहुंचे हैं वहां पर, पहुंचना है आगे, तो ये सब स्ट्रगल करनी पड़ती है ना। तो ऐसे देखा। और लेकिन यहाँ पर इधर जो काम कर लेगा अपना अपना बॉस खुद ही है। आप तुझे इधर 2-2.5 साल काम ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੌਸ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ बेचारे बंदे मिले हैं जो कि गए हुए थे और 10-10 8-8 साल हो गए, उनकी पीआर नहीं हुई, और बच्चे इधर जवान हो गए, और उधर वो पीआर के लिए बैठे हुए हैं। कभी मतलब गए कोई हियरिंग, कभी कोई हियरिंग, कोई हियरिंग, ऐसे 8-8 9 साल बच्चों को, फिर वो ना इधर के ना उधर के, मतलब कि एक एक स्ट्रगल है। किसी की पीआर 5 साल में हो जाती, 6 साल में हो जाती, किस्मत की बात है। अभी इन्हें फेमस होने के बाद मैंने कोई चिंता नहीं है चारों तरफ से, मतलब कि मैं ज्यादा, मैं भी खुद भी, मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मैं इतना रिलैक्स हो गया ਸੀਗਾ इस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ कि मैं शराब बहुत पीਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। मैं अपनी एक स्टोरी ਦੱਸਦਾ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। और ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, वो ज्यादा रिलैक्स भी माड़ा है। वो तो मैंने शराब ज्यादा पीनी शुरू कर दी, तो इसके साथ मेरा वार्तालाप कम हो गया कमलजीत के साथ, है ना। और फिर इसने सोचा कि डैडी तो अभी शराब ज्यादा पीने लग गए हैं, तो मेरे को बताया इसने, डैडी आप शराब मत ज्यादा पियो। मैंने कहा बेटा मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ, किसी शराबी को आप बोलोगे कि आप शराब क्यों पीते हो, तो बोलेगा मैं तुम्हारे पैसे ही पीता हूँ। किसी भी शराबी को बोल के देख लो, है ना, वो यही बोलेगा। तो फिर मेरे को फीलिंग भी होना कभी कभी, यार मेरे को बच्चे ये बोल रहे हैं मैं ज्यादा शराबी तो नहीं हो गया कहीं। फिर मतलब कि शराबी आदमी का मूड होता है, वो कभी भी किसी को कुछ बोल देगा, सुबह उठ के माफिया मांग लेगा, है ना। तो फिर मेरे को यहाँ, चलो हम सुबह शाम पाठ तो करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं चारों तरफ से, लेकिन फिर भी वो जो आदत होती है ना वो छूटती नहीं इतनी जल्दी। तो फिर मेरे को ये कमलजीत बोला कि मैं डैडी चलो आपको चंडीगढ़ ले चलता हूँ, यहाँ पर एक संस्था है कोई अल्कोहलिक अनोनिमस। मेरे को 2 क्लास अटेंड की मैंने वहाँ, 2 ही क्लास अटेंड करने के बाद मेरे को पता चल गया कि ये तो बीमारी है, शराब तो बहुत बड़ी बीमारी है, तो इसको तो छोड़ देना चाहिए, तो मन को पक्का करना पड़ेगा। तो देखो जी अभी मेरे को 3 महीना हो गया, मैंने दारू को टच नहीं किया, और बच्चे भी खुश हैं, परिवार भी खुश है, क्योंकि दारू पीने के बाद जो बुजुर्ग होता है ना अपनी हैट करता है, वो उसको ये नहीं पता, वो मैं करता रहेगा कि मैं ये किया, मैं वो किया, मैं वो किया, है ना। लेकिन हर परिवार में ही है ये, उनको ये नहीं पता कि तुम बुजुर्ग हो गया है, अभी अपने आप को संभाल, कैसे तूने संभालना है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, उसके बाद अपना कोई रिश्तेदार आता है उसके साथ कैसे डील करना, तो अपने मैं को छोड़ दे। लेकिन किसी भी बुजुर्ग की यही होती है कि मैंने ही काम किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं भाई मेरे, फिर मेरे को यहाँ क्लास में भी बोल रहे थे, मैं क्लास में बोले आप जैसे तो दुनिया बहुत इधर घूम रही है, बड़े बड़े अफसर घूम रहे हैं, तो आप क्या है, आप कुछ नहीं है, आप शराब पी लिए जीरो है, आप नहीं पिए, आप नशा नहीं किए, तो आप हीरो हैं। आप अपने होशोबास में बात करें किसी से भी और बढ़िया रहेंगे, आपको हर एक कोई लाइक करेगा। लेकिन आप शराबी होंगे वो दूर से बंदा सैर कर देगा, बोला ये शराबी बंदा इसको क्या करना। तो ये भी मैं एक बताना चाहता हूँ कि नशे से हमेशा हमें दूर ही रहना चाहिए, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, घर में माहौल को अच्छा बना के रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर का माहौल खराब है तो लोग तो मजाक करेंगे, वो तो लपटें और निकलेंगी, उस लपटों को संभालना एक बड़े बुजुर्गों का काम होता है। देखो जी हर एक पेरेंट्स की यही गल होती है कि मेरा बेटा मेरे से 10 गुण आगे निकल जाए। जैसे एक बिजनेसमैन है, वो यही सोचा कि मेरा बेटा बिजनेस करे और मेरे से 10 गुना आगे निकले और दुनिया में मेरा बड़ा नाम। लेकिन बेटा वो चाहता ही नहीं, बेटा एक सिंगर बनना चाहता है, उसको अब जबरदस्ती नहीं बिजनेसमैन बनाता। ये बच्चों की भावनाएं हमें समझनी चाहिए,
उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए कभी भी। बच्चों को थोड़ा खुला माहौल भी देना चाहिए मदर फादर को, कि उनको उसके ऊपर भी छोड़ना चाहिए। हो सकता है उसके अंदर से कौन सी क्रिएटिविटी निकला है, क्या पता वो क्या करे इस समाज के लिए, संसार के लिए। लेकिन हम उसको उसी बंदिश में रखते हैं कि बेटा नहीं, यही कर, यही कर, ये चीज को थोड़ा सा बच्चों को खुला छोड़ना चाहिए माहौल में, और जो चाहते हैं उनको करने देना चाहिए। ये नहीं करने देना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ नशा कर रहा तो उसको और बढ़ाओ, फिर नशा कर तू बेटा, चल बढ़िया है। ये चीज नहीं, वो उसका तो हमें पैरवाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किधर जा रहे हैं बच्चा। आज के माहौल में देखो, बच्चे बाहर जाते हैं संगत में, ट्यूबवेलों में टीके लगा के सिरिंज में, दूसरे दिन माँ बाप बेचारे घूम रहे हैं और उनकी डेड बॉडी उठा के, कितना नुकसान हो गया है नशे में, कितना नुकसान हो गया बच्चों का। क्योंकि वो माँ बाप ने नहीं बोला है उनको ये करने के लिए, बाहर सोसाइटी जो है उसमें पड़ गए, या दोस्तों मित्रों में। तो ये चीज को बच्चों को भी हमें पैरवाई करनी पड़ेगी। बच्चे जा कहाँ रहे हैं, बच्चे आ किधर से रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस चीज में बढ़ावा नहीं हमें देना चाहिए। जो चीज काम करना है उसके बीच में हमें हेल्प करनी चाहिए बच्चों को, उनको हेल्प देनी चाहिए कि हाँ बेटा चलो कोई बात नहीं, ये पैसे ले, ये काम कर, ये कर ले, और तेरे को कोई सहूलत चाहिए वो देनी चाहिए, कोई खरीदनी है चीज वो खरीदना। मतलब कि बच्चे को हेल्प इस चीज की करनी चाहिए, ना कि हमें गलत तरफ जो जा रहा बच्चा उसको तो रोकना ही पड़ेगा माँ बाप को। आज पंजाब के अंदर हालात देखो कैसे चल रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये भी कहता हूँ कि हर एक नौजवान जो है अपने माँ बाप के कहने में रहे, और उनके कहने में रहेगा तो बहुत अच्छी जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि उनका तजर्बा होता है। और अगर अपनी मनमानी करके कहीं गलत सोसाइटी में पड़े तो उसके बाद में घर तो बर्बाद ही है। किसी के एक बच्चा है, किसी के दो बच्चे हैं, एक बच्चा गया तो पूरी गई जनरेशन। तो ये भी है कि नशे से दूर रहना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ नशे से दूर, और घर के अंदर अपने माहौल बना के रखना चाहिए, तभी खुशी मिलती है। नहीं देखो, अभी बच्चे आए हैं तकरीबन, मेरे ख्याल 50 बच्चे तो आगे सीख के चले गए होंगे। और पता ही है कि अभी भी बच्चे सीख रहे हैं, देखो बाहर से भी आए हुए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है बच्चे तो आए, देखें माहौल को और सीखें और अपनी जॉब पकड़ें।